Welcome students in our YouTube channel Discovery International School, collaboration with the YCL, the brand of quality education. Dear students, we provide the very good and fantastic facilities for G and NEET examination, for the preparation of G and NEET pre-examination. Subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting latest updates. Okay, be continue link form with us and improve yourself again and again. Okay, myself Sunil Kumar, botany faculty. In previous YouTube video, we have discussed about abiotic factor of ecosystem, and especially in the last video, we have discussed about the abiotic factor of ecosystem of soil. Okay, soil and about the soil structure, soil composition, organic composition and soil profile etc. पिछले वाले जितने भी इसके YouTube वीडियोज़ हैं उनमें सोइल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, सनलाइट के बारे में, जो भी अबायोटिक कंपोनेंट्स उनके बारे में बताए थे. आज है एक छोटा सा टॉपिक है अदर अबायोटिक कंपोनेंट. अदर अबायोटिक कंपोनेंट. ओके, अदर अबायोटिक कंपोनेंट में देखिए बेटा तीन चीजें स्पेशली दी गई हैं. दे आर थ्री टाइप ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड इनटू अदर अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. वन एज ह्यूमिडिटी, second one is precipitation, and third one topography. Okay, so how many? Three type: humidity, precipitation and topography. Okay, so let us start the first point, humidity. What is humidity? Humidity क्या है? Humidity का मतलब होता है the presence of water moisture into invisible form that can't be seen. जो दिखाई नहीं देती, वाटर मॉइस्चर की वो कंडीशन जो दिखाई नहीं देती और प्रेजेंट होती है एयर में, एटमॉस्फेयर में, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. ओके, एंड ह्यूमिडिटी and the next topic into humidity is known as relative humidity. What is relative humidity? That means the presence of water moisture into invisible form up to saturation level of air. Up to saturation level of air or saturation point of air is known as relative humidity. That means more than saturation point, water not able to hold any type of water moisture or water vapor. Okay, यानी कि saturation point पर या इससे ज़्यादा कभी भी कोई भी एयर है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रखती. वो आप लास्ट अप टू सेचुरेशन पॉइंट तक, यानी कि पूरी तरह से वो सेचुराइट हो जाती है, सेचुराइज हो जाती है किसके साथ? वाटर मॉइस्चर के साथ. उस पॉइंट को कहते हैं और इससे ऊपर वो कभी भी होल्ड नहीं कर सकती. ये इसकी लास्ट पॉइंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, दिस इज नोन एज ह्यूमिडिटी. आप जानते हैं ह्यूमिडिटी इट इज इक्वेटर विच इज नोन एज 0 डिग्री. इक्वेटर, a straight line which is imaginary line which we can imagine, by which we can divide the earth into two equal halves, known as equator. It is found just middle portion of our globe, our earth. In this direction north and in this direction south pole found. Okay, this is known northern hemisphere and this is known southern hemisphere. You know very well the maximum humidity found at equator. And humidity and temperature, both type of characters reduced or reduction take place from equator towards north pole and equator towards south pole
ग्रेजुअली। ओके, यानी कि जब हम इक्वेटर से कहाँ जाते हैं, पोल की ओर जाते हैं, चाहे वो साउथ पोल हो चाहे वो नॉर्थ पोल हो, कोई सा भी पोल हो, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है, और ये तीनों ही फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी इकोसिस्टम को रिच इकोसिस्टम बनाते हैं। और जो जो हम इस इक्वेटर से किसकी तरफ जाते हैं, किसी भी पोल की ओर जाते हैं, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ह्यूमिडिटी, ये रिड्यूस होते जाते हैं, और यही एक रिजल्ट होता है कि जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही वीक होता चला जाता है, फ्रगाइल फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम बनता जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज precipitation. What do you mean precipitation? Precipitation means incoming of water on the earth. Incoming of water on the earth in any of form. Incoming of water in any form on earth is known precipitation. Okay, it can be drizzle, from hail, from rain, from snow, from, यानी कि कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है, drizzle, small, very small snow particles, and hails, solid particles, जिनको ओले भी कहा जाता है, हेल्स कहलाते हैं, रेन, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड स्नो। ओके, और वी कैन से फॉग, जो कि आजकल इस सीजन में है। ये सब वो फॉर्म है वाटर की जिस फॉर्म में वाटर हमारी अर्थ पर पहुंचता है, एक वाटर साइकिल मेंटेन करता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। Okay, and precipitation determine the different kind of ecosystem on our earth. समझ गए आप? And the last, topography, structure of earth, surface. अर्थ की जो अपर लेयर होती है उसकी स्ट्रक्चर, कहीं पर वैली है तो कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर सैंड ड्यून है, कहीं पर फ्लैटलैंड है, तो कहीं पर प्लेट्यूज है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, वो किस में इंक्लूड होती है बेटा, ये इंक्लूड होती है टोपोग्राफी में। और टोपोग्राफी है वो भी एक फैक्टर होता है जो डिटर्मिनेशन करता है द टाइप ऑफ इको सिस्टम। ओके, तो ये तीन चीज़ें हो गई किसकी, ये तीन चीज़ें हो गई अदर अबायोटिक कंपोनेंट की, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड टोपोग्राफी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ ecosystem. There are two function of ecosystem, यानी कि इकोसिस्टम कौन कौन से फंक्शन करता है, हम उनकी बात करें तो पहला फंक्शन है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, flowing of energy from one trophic level to next trophic level. Okay, for the very well maintaining of any kind of ecosystem. Okay, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लिंडमैन एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम पिरामिड। ठीक है, कौन सा, लिंडमैन एनर्जी फ्लो पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। जो हमने पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम का एक थर्ड टाइप है इकोसिस्टम का पढ़ा था, नंबर ऑफ इकोसिस्टम, नंबर ऑफ पिरामिड, बायोमास पिरामिड एंड एनर्जी पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आप ये भी पढ़ चुके हैं कि फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% एनर्जी कैन बी फ्लो, 10% एनर्जी कैन बी फ्लो एंड 90% एनर्जी can flow from one
trophic level to next trophic level, or we can say one trophic energy trophic level to next energy trophic level. Okay, because 90% of energy convert from one form to another form and get lost into environment, into atmosphere. And the second one, the second function of ecosystem is a biogeochemical cycle. Which kind of? Biogeochemical साइकिल. ओके, बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम जब भी समझना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं ये क्या है. बायो दैट मीन ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? एंड जियो मीन्स अर्थ. अर्थ दैट मीन rock, structure, surface, etc. Okay, and the chemical क्या है यहां पर? Chemicals that mean minerals, and last point is cycle that mean पाथवे, यानी एक वो रास्ता, एक पथ, एक पाथ जिसमें मिनरल्स हैं वो हमारी अर्थ के विभिन्न स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में और ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एक साइक्लिक प्रोसेस में चलते रहते हैं, एक साइक्लिक रोटेशन करते रहते हैं. इस साइक्लिक रोटेशन को ही क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल. और बायोजियोकेमिकल साइकिल, अब इसकी फॉर्म कितनी होती है देखिए, समझ गए ना. बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म, जियो मीन्स अर्थ, रॉक, स्ट्रक्चर एंड सरफेस. ओके, and the chemical that mean minerals which are found in the form of rocks on the surface of earth. Okay, and the cycle that mean pathway. In a which kind of pathway? Cyclic pathway. Okay, so kinds of biogeochemical cycle. Kinds of biogeochemical cycle. There are two kinds of biogeochemical cycle. कितनी टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. और कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट, गैसियस फॉर्म. पहला किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है. और दूसरा होता है नंबर 2, सेडिमेंट्री फॉर्म. गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल. सेडिमेंट्री के एग्जांपल कौन से होते हैं? फॉस्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम. देयर आर 3 टाइप ऑफ सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल. एंड गैसियस, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. वी कैन से कौन, CHON, कौन, CHON, कौन. कार्बन है वो गैसियस फॉर्म में होती है. हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में भी होती है. वैसे हाइड्रोजन को कहाँ से रिसीव किया जाता है? वाटर से रिसीव किया जाता है. लिक्विड फॉर्म में होती है, बट ये गैसियस फॉर्म में भी होता है. एंड ऑक्सीजन ऑल्सो गैसियस फाउंड इनटू गैसियस फॉर्म, एंड नाइट्रोजन फाउंड इनटू गैसियस फॉर्म. देयर आर 2 टाइप ऑफ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन एंड नाइट्रोजन. ये 2 टाइप के जो हैं ये आपके सिलेबस में हैं, और यहाँ पर हम ये 2 ही पढ़ेंगे. जबकि सेडिमेंट्री में केवल हम कौन सा पढ़ेंगे? फॉस्फोरस साइकिल. ओके, सो कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल. देयर आर 3 बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर इंक्लूडेड इन अवर NCERT syllabus into CBSE board exam as well as into NEET, NTA NEET exam. Okay, so first of all,
we should learn something about the simple biogeochemical cycle. Simple biogeochemical cycle में बेटा क्या होता है, उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए. सबसे पहले देखिए, ये हमारी अर्थ है. मान लीजिए सपोज दैट इट इज अवर अर्थ. हमारी अर्थ पर जितना भी आप समझते हैं एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है सन, in the form of sunlight. Okay, sun only a single energy source which provide energy for all type of living being and all type of biogeochemical cycle. Okay, this energy first of all received by प्रोड्यूसर. कौन रिसीव करता है? प्रोड्यूसर्स. यू नो, ग्रीन प्लांट्स एंड प्रोड्यूसर, फोटोसिंथेटिक ऑल ऑर्गेनिज्म आर नोन एज प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गीज, सम बैक्टीरियाज एसेट्रा. ओके, दीज प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स. एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप. एनिमल में कौन कौन हो सकता है? फर्स्ट हर्बीवोर. ओके, सेकंड कार्निवोर. एंड थर्ड वन ओमनीवोर. ये सब चीजें आप पढ़ चुके पहले भी. डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल मे बी herbivore, carnivore and omnivore. They release their dead and decaying part, their dead part, different dead type of dead part of these animals, and also dead and decaying parts of plants known as litter. You know very well. Litter decomposed by decomposers. Decomposers. ओके, कौन कौन सी चीजें हो गई? पहला हो गया प्रोड्यूसर. मेन थिंग कौन सी है? मेन कंपोनेंट कौन सा है? प्रोड्यूसर, जो कि इस सनलाइट एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है? केमिकल एनर्जी में. और ये केमिकल एनर्जी एनिमल्स को प्रोवाइड कराई जाती है. यू नो वेरी वेल. Producers are known as autotrophs, and all animals which are depend on directly or indirectly on the plants known as heterotrophs. And heterotrophs में ये जो एनिमल्स होते हैं सारे, ये हर्बीवोर है, कार्निवोर है, फिर ओमनीवोर है, ये सारे पाए जाते हैं. इनके डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स भी होते हैं, इनके एक्सक्रीट्रा भी होता है जो कि अर्थ पे रिलीज किया जाता है, और प्रोड्यूसर्स का भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट है वो अर्थ पर आ जाता है. उसको क्या कहते हैं? लीटर. लीटर चेंज इनटू ह्यूमस बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर. ये एक साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है बेटा. ये पूरी साइक्लिक प्रोसेस में चलता है. ये इस डिकम्पोजर से जो मिनरल फ्री होते हैं, मिनरल्स जो फ्री होते हैं डिकम्पोजर्स की हेल्प से, ये मिनरल्स अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट से, और प्लांट से चले जाते हैं एनिमल में. एनिमल इन्हें हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर की फॉर्म में लेते हुए वापस डिकम्पोजर्स में भेज देता है, सरफेस पे भेज देता है. एंड इस प्रोसेस में क्या होता है? कुछ मिनरल्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं, कुछ मिनरल्स हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो कुछ मिनरल्स नए इंपोर्ट भी होते हैं, यानी कि इंक्लूड भी होते हैं, तो कुछ वो इससे एक्सक्लूड भी होते हैं, बाहर भी निकलते रहते हैं. ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है. यू कैन सी हियर, शायद आप समझ गए होंगे इस बात को. इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल बायोजियो केमिकल साइकिल. ओके, नॉर्मल बायोजियो केमिकल साइकिल. अब देखिए बेटा, मैंने आपको कौन कौन सा केमिकल साइकिल बताया? मैंने आपको केमिकल साइकिल बताया कार्बन गैसियस बायोजियो केमिकल साइकिल. और उसमें कौन कौन से हमें पढ़ने हैं? वैसे तो मैंने बताया आपको CHON, कौन
कौन? CH1, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बट हम उसमें कौन से पढ़ेंगे? सिर्फ दो पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल यानी नाइट्रोजन साइकिल, और दूसरे क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में सिर्फ कौन सा पढ़ेंगे हम? फॉस्फोरस साइकिल। ओके, दीज आर फाउंड इनटू सेडिमेंट्स फॉर्म, इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म। ओके, लेट अस स्टार्ट। कार्बन साइकिल। ओके, कार्बन साइकिल है गैसियस साइकिल का पहला फॉर्म। वैसे मैंने आपको ये बताया है, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, चलिए, फर्स्ट गैसियस फॉर्म ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल। याद रखें बेटा, पर ईयर by the help of producers per year 4 into 10 to the power 13 kg पर ईयर। कार्बन फिक्सेशन है वो प्रोड्यूसर्स की हेल्प से किया जाता है। कितना? 4 into 10 to the power 13 kg पर ईयर। ये सबसे ज्यादा वो अमाउंट है जो कार्बन फिक्सेशन होती है। कार्बन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है, एंड थ्रू द कार्बन फिक्सेशन यू नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्योंकि इनमें सब में मेनली क्या है? इनमें सब में मेनली क्या है? कार्बन है। इसलिए क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। इतना कार्बन फिक्स किया जाता है। आप जानते हैं वैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन की अमाउंट होती है 0.03% ऑफ कार्बन फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर, यू नो वेरी वेल। ओके, एंड कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है? तो देखिए बेटा, 3 फॉर्म में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, एंड हाइड्रोस्फीयर, इन हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर मास, ये भी सोल्यूबल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाई जाता है। इसकी अमाउंट होती है टोटल कार्बन डाइऑक्साइड की, द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली 71, अ वेरी ग्रेट अमाउंट, a great part of carbon dioxide found into dissolved found into water. Okay, and the third, carbonates, rocks। जो रॉक्स होती है उनमें कार्बोनेट्स होते हैं। कार्बोनेट यू नो वेरी वेल, कैल्शियम कार्बोनेट की जो रॉक्स होती है वो कार्बोनेट रॉक्स होती हैं। हाइड्रोस्फीयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और डिफरेंट प्रोसेस से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती है। ओके, जबकि एक इसकी बहुत लिटिल अमाउंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट अमाउंट होता है उसका 70% एक बहुत बड़ी अमाउंट सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? हाइड्रोस्फीयर में पाई जाती है। एंड कार्बन ऑलवेज फाउंड इनटू फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड available for plants so that they can absorb it and utilize into carbon fixation. Okay, जिसको नॉर्मली क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब ये जो एटमॉस्फेयर की कार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्रोड्यूसर्स अब्जॉर्ब करते हैं बेटा सबसे पहले, और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो आप जानते हैं प्रोड्यूसर्स, आप अच्छे से जानते हैं कौन सी प्रोसेस में इसको काम में लेते हैं। इसको ये प्रोड्यूसर्स हैं ये फोटोसिंथेसिस में,
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है वो काम में ले लेते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। प्लस साथ में ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करते हैं। कौन सी प्रोसेस में? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पायरेशन। कौन सी प्रोसेस में? रेस्पायरेशन में। अब प्रोड्यूसर्स जो है उनसे ये कार्बन है वो फूड की फॉर्म में कौन ले लेते हैं? एनिमल्स ले लेते हैं। और एनिमल्स भी आप अच्छे से जानते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस करते हैं? रेस्पायरेशन। दे ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक टू प्रोड्यूसर्स। एंड प्रोड्यूसर्स, अब ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। ओके, किस फॉर्म में? फॉसिल्स फ्यूल एज ए कोल। दोनों का डेड एंड डिकेइंग पार्ट है वो यहाँ पर किसकी फॉर्म में? लीटर की फॉर्म में। लीटर की फॉर्म में या डेड एंड डिकेइंग मटेरियल विच स्लोली चेंज इनटू ह्यूमस। किस में चला जाता है? माइनरल्स। इन माइनरल्स को कौन बनाता है बेटा? डी कंपोजर्स इसको चेंज कर देते हैं मिनरल्स की फॉर्म में, जो किस में चले जाते हैं? सॉइल सॉल्यूशन। ओके, इनकी जो प्रेजेंस होती है मिनरल्स के साथ साथ बहुत सारा ह्यूमस होता है। ये ह्यूमस सॉइल सॉल्यूशन में चला जाता है। सॉइल सॉल्यूशन में रूट रेस्पिरेशन होता है। रूट रेस्पायरेशन भी होता है और रूट रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड फिर फ्री हो जाता है। ओके, एंड द सॉइल सॉल्यूशन में फिर यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस प्रकार से यहां आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं फॉसिल्स फ्यूल है यानी और फायरवुड है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड फायरवुड ऑल्सो रिलीज a very great amount of carbon dioxide. Different kind of vehicles and different kind of systems and industries which are found in our system on our earth also release a very great amount of carbon dioxide, and this carbon dioxide again return to atmosphere. Okay, also released by the hydrospheric component, biotic component. For example, animals, aquatic animals and aquatic plants also respire, and through respiration they also release carbon dioxide. Okay, and they slowly change into carbonic rocks in the form of carbonates. Okay, so this is a carbon cycle. You can understand very easily. बहुत सिंपल है, बिल्कुल साधारण है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर से किस में चेंज हो जाती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है, जिसको एनिमल्स ले लेते हैं। इनका डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है वो मिनरलिफिकेशन होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है। उस प्रोसेस में सॉइल सॉल्यूशन में चला जाता है। सॉइल सॉल्यूशन में साथ साथ फॉसिल फ्यूल भी बनता है, जो कि आप जानते हैं मोस्टली कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, और उनके कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है और सॉइल रूट रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इस प्रकार से ये प्रोसेस है वो चलती रहती है। ओके, तो इस वीडियो में हमने जो भी यहाँ तक पढ़ा है वो है बेटा अदर्स अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एंड उसके साथ साथ है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। दो टाइप के फंक्शन होते हैं इकोसिस्टम के, कौन कौन से होते हैं? वन, बायोजियो केमिकल साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो हम देख चुके हैं, एनर्जी फ्लो एनर्जी पिरामिड में, इकोसिस्टम पिरामिड में। ओके, और अब हमने क्या किया है? बायोजियो केमिकल साइकिल, द साइक्लिक प्रोसेस, द movement of any chemical or any abiotic component, abiotic material which are required for the synthesis of different type of organic material which are required in the body of the living being enter through
प्रोड्यूसर नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो अर्थ पर होता रहता है। दो टाइप के होते हैं, गैसेस फॉर्म एंड सेडिमेंट्री फॉर्म। गैसेस फॉर्म में गैस की फॉर्म में रहते हैं इसलिए गैसेस फॉर्म है, और सेडिमेंट्री फॉर्म में रॉक की फॉर्म में जमे रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, और इसमें मैंने एक नॉर्मल आपको साइकिल बताया। इसके बाद कार्बन साइकिल बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहां देख सकते हैं कि एक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गया, कार्बन साइकिल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे इसका आगे चलकर कौन सा है, नाइट्रोजन साइकिल। ओके, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए। प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, पुश द बेल आइकन अगेन, ओके, फॉर गेटिंग लेटेस्ट एंड अपडेट्स ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। ओके, बाय।